have a look. I'm coming. The name of this place is Cala Bahia. Cala Bahia. It's an amazing place in South Goa, ladies, with the best Bloody Marys in the world. Wonderful. The name has a meaning to it. I don't actually work here. I'm just helping them. Okay. I just wanted to... What's the meaning of Cala Bahia? Hi. What's your name? Sorry? Art Bay. Art Bay. Yeah. Wonderful. And it's in which language? Is it German? Kala is in Hindi. Kala is India, I know, but what about Bay? Bahia is in Portuguese. Portuguese. Yeah. Thank you. Thank you so much. Oh, no problem. कला बहिया लोकेटेड है कोलम बीच पे इन साउथ गोवा, जो पालोलम से 10 मिनट की स्कूटी राइड है और हमारे बैम्बू कॉटेज स्टे से 2 मिनट की वॉकिंग। वेलकम टू द ब्यूटीफुल कोलम बे। अगर आपको जिंदगी में शांति चाहिए, देन कोलम इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। वेल, कोलम बे लोकेटेड है पटनम और पालोलम बीच के बिल्कुल बीचों बीच, और यहाँ आपको ज्यादातर यंग फैमिलीज या लॉन्ग टर्म ट्रैवलर्स ही मिलेंगे। और यहाँ की पानी काफी साफ है और बीचेस भी काफी शैलो हैं, मेकिंग इट सेफ फॉर चिल्ड्रन एंड अल्कोहलिक्स। हमारे साउथ गोवा स्टे के बारे में जानने के लिए आप हमारे वीलॉग भक्ति कुटीर देख सकते हैं, और कोलम बे पे ही लोकेटेड है कला बहिया। Hello everybody, so we are at Kolam Beach and we just hit a shack and let's see how this is. It's right at the beach and if you can see, this is the place and well, we are here to enjoy the sunset and let's see how this turns out to be. कला एक हिंदी वर्ड है विच मीन्स आर्ट, और बहिया एक पोर्चुगीज वर्ड है जिसका मतलब है समुद्री किनारा। Excuse me. Hi. Is this right? This one is pretty right. And what would you recommend us to go in for some starters or for some cocktails? So definitely I would recommend the On the Rocks and the Pink Gin Fizz. They're really popular if you're a gin drinker. It's also strawberry season, so we use fresh strawberries. Okay. It's really lovely. Okay. The Sea Breeze is also really, really wonderful. No, he wants it something in the, gin base, sorry. But with not in different... I don't want strawberries. Not with the strawberry. Okay, actually sir, what we can do is if any of these kind of speak to you, we can do them with gin instead of the alcohol on the menu. Okay. Fine. And what do you recommend us to in For food, food. for starters? Okay, are you guys vegetarian or Non-veg. Non-veg, wonderful. But we would prefer chicken, not fish or not any other. Okay, cool. So not exactly non-vegetarian, but vegetarian. Our meze board is really wonderful, really Okay. genuine Mediterranean flavors. And then the lamchon. This is a really nice But then it's lamb mince. Yes. No. Chicken base. ठीक है, एक lamb ले आते हैं। Yeah, and You all there's a want crispy lamb? pork belly as well, which is phenomenal. Pork. pork. Yes, you all can go. Can you recommend me something in chicken as well? Because we eat pork, but these people, these two women we don't. don't really have many. We don't actually have any chicken appetizers. Okay. Probably our best chicken dish that I can recommend to you is actually on our mains, and it's chicken breast, which has been stuffed with spinach and feta. Or we can go in for pizza. Cheers. Do you want me to take a roll?
तेरी सासू माँ देखेगी तो रूह अफ़ज़ा पी ले। कुछ नहीं। बिल्कुल भी रूह अफ़ज़ा नहीं है। और क्योंकि ये बीच फेसिंग है तो यहाँ सनसेट टाइम पे आना इज ऑलवेज अ वाइज डिसीजन। और फिलहाल तो यहाँ ज्यादा भीड़ दिख नहीं रही है मुझे। कला बहिया में स्टे ऑप्शंस हुआ करते थे बट अब नहीं रहे एंड इट इज ओनली अ रेस्टोरेंट नाउ। यहाँ फिलहाल मुझे इंडियन से ज्यादा तो फॉरेनर्स ही दिख रहे हैं एंड दिस इज द डांस फ्लोर। कला बहिया का खाना और डेकोर दोनों ही यूरोपियन है और यहाँ आपको इंडियन फूड बिल्कुल नहीं मिलेगा। लॉकडाउन के कारण साउथ गोवा के बहुत सारे पार्टी प्लेसेस एंड शैक्स बंद हो चुके हैं एंड कला बहिया आर अमंग्स द फ्यू जो अभी भी ऑपरेशनल हैं। शाम ढलते ही यहाँ की म्यूजिक थोड़ी लाउड और फास्ट हो गई है। अगर आपको यूरोपियन खाना पसंद है तो आपको यहाँ की डिशेस काफी पसंद आएंगी। साउथ गोवा में इन जनरल काफी ज्यादा फॉरेन क्राउड है कंपेयर टू नॉर्थ गोवा। वैसे आप नॉर्थ गोवा की वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे चैनल में। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बाय द नेम ऑफ गोवा बीच बियर एंड बिकनी। इनका सिटिंग अरेंजमेंट से मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये बने हैं मट्टी से। कला बहिया पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। रात होते ही यहाँ क्राउड भी बढ़ गई और टेबल्स भी सारे फुल हो गए। यूरोपियन स्टार्टर्स और कॉकटेल्स तो ठीक है बट अब डिनर के लिए हमें चाहिए कुछ देसी, तो हम चले अपने अगले लोकेशन पे। So this is the Putnam beach and well, we've got few shacks here. Let's see how that turns out to be. But South Goa is definitely a quiet beach. It's not a party place at all. I mean, I don't see boom boom or hear boom boom music in and around this area, but I'll still check all the shacks before we actually sit and drink in one of them. So let's see which one turns out to be good. I hope you enjoy South Goa as much as I am doing it right now. That's where we are going right now. पटनम बीच की ये आखिरी शैक है। पूरा बीच हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट में कवर कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ब्राइट व्हाइट स्ट्रीट लाइट। सारे शैक्स घूमने के बाद इस शैक की वाइब हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। पटनम बीच में ऑलमोस्ट सारी शैक्स रात 12 बजे तक बंद हो जाती है और किसी भी शैक में आपको लाउड म्यूजिक नहीं मिलेगी। मैजिक वर्ल्ड शैक का देसी डिनर तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। वेल, गोवा आने का बेस्ट टाइम है बिटवीन अक्टूबर टू मार्च क्योंकि गर्मी यहाँ एक्सट्रीम है और बारिश में शैक्स बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स। साउथ गोवा आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा आपको कोनाकना और फिर आता है मडगांव और एयरपोर्ट करीबन 1.5 घंटे की दूरी पे है। अनफॉर्चुनेटली ओला और उबर गोवा में नहीं चलती, तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर स्कूटी फॉर अप्रोक्सीमेटली 400 पर डे। वेल, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर कोलम एंड पटनम ट्रिप। जाने के पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गोवा की बाकी जगहों की वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें गोवा से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या इंस्टा और FB पे मैसेज कर सकते हैं। दोनों की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए जगह एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता।